हरे कृष्णा। অনেক গরম লাগছে, না? বহুত গরম লাগ রা है। শীতকাল চলে গেছে, গরম লাগছে অনেক। তো আমরা শীতকালে আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে শরীরটাকে গরম রাখবেন, কি কি খাবার খেলে, কোন কোন স্পাইসেস মশলা বা কোন ধরনের খাবার খেলে শরীর গরম থাকবে। এবার গরমের কালে, গ্রীষ্মকালে কোন কোন খাবার খেলে শরীর ঠান্ডা হবে, গরম থেকে বাঁচবো আমরা, সেটা আমরা তাদেরকে দেখাবো। তো আমরা মায়াপুর ধামে স্বাগতম জানাচ্ছি সবাইকে। পরতত্ত্ব স্টুডিওতে আমাদের সাথে আছেন শ্রীমতী গান্ধারী মাতাজি, যিনি আয়ুর্বেদের দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে এবং বৈদিক ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রেডিশনালি যে কালচারালি আমাদের যা যা ঘরোয়া পদ্ধতিতে এই সমস্ত খাবারের ফুড রেমেডি, খাবার একটা ঔষধের মতো কাজ করতো। শুধুমাত্র পেট ভরার জন্য খাবার না বা জিহ্বার তৃপ্তির জন্য খাবার না, এটা খাবারটা একটা ঔষধের মতো কাজ করতো, পথ্যের মতো কাজ করতো। সেটা আমরা আমাদের বৈদিক কালচারে দেখি, কিন্তু বর্তমানে সেই জ্ঞানগুলো হারিয়ে গিয়েছে। তো আমরা মাতাজির কাছ থেকে আজকে দেখব কয়েকটা ব্যাপার যে গরমের দিনে কি কি খেতে পারেন আপনারা, খাওয়া উচিত। তো মাতাজি कैसी है आप और कैसी लग रही है गर्मी में आपको? अभी हमको तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका खाने के लिए अलग चीज़ें बन जाता है। जैसे विंटर में अलग होता है, अभी समर में तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। हम इतना फॉर्चुनेट है कि अपने देश में सब भी कुछ है, लेकिन लोग भूल गए। इसीलिए ये संस्था अपना आगे चलाना, बच्चे को सिखाना कि हम ऐसा ही सीखे। हमारी मम्मी, नानी सभी ऐसे ही बोलते हैं, ये गर्म है, ये ठंडा है। तभी पता चल गया कि सभी का कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ क्या है ऐसा। इसीलिए ऐसा भी हमने सीखा ऐसा है, राइट? तो आज कितना दिखाएंगे आप, कितना आइटम दिखाएंगे? तो पहले हम हर्ब्स के बारे में बोलेंगे, फिर थोड़ा और लिक्विड के बारे में कि जैसे घी, तेल वगैरह उसके बारे में। तो ये अपने किचन में सभी मिलता है, बाहर जाना ही नहीं पड़ता है, सभी किचन में ही है। तो हम आज उसके बारे में बोलेंगे। মানে আপনার রান্নাঘরে যা যা জিনিস আছে সেগুলি দিয়ে কিভাবে আপনি আপনার শরীরটাকে ঠান্ডা রাখবেন এই গরমের দিনে, তা আজকে আমরা দেখাবো। তো মাতাজি শুরু কর सकते हैं। हाँ, तो देखो सभी को पता है कि हमारे घर बादाम होता है। इनको बादाम कहते हैं, लेकिन बंगाल में पीनट्स को बादाम कहते हैं। एक्चुअल बादाम ये है जो आलमंड्स होता है इंग्लिश में, तो बादाम कहते हैं। হ্যাঁ, এটা বাংলায় এটাকে কাঠবাদাম বলা হয়, আলমন্ড, কাঠবাদাম। हुँ, तो वो एक्चुअली वेरी हीटिंग। आप कच्चा खाओ या ऐसा ही खाए तो वो हीटिंग है। लेकिन इसको भिगोकर इसका छिलका निकाल लो तो वो कूलिंग है। कितना अमेजिंग चीज। তো দেখুন, এটা হচ্ছে মজার অদ্ভুত ব্যাপার। এই যে কাঠবাদামটা, যদি এটা আপনি কাঁচা কাঁচা এরকম করে খান, জাস্ট খেয়ে নিলাম, এটা খুব গরম হয়, শরীরটাকে গরম করে দেয়। কিন্তু এটাকে যদি আমরা জলে ভিজিয়ে, রাত্রেবেলা ভিজিয়ে রেখে দেবেন, পরদিন সকালে এটাকে এরকম চাপ দিয়ে তার যে ছোলাটা আছে, খোসাটা ছাড়িয়ে নেবেন। খোসা ছাড়িয়ে যখন সাদা অংশটা খাবেন, তখন এটা আমাদের শরীরটাকে ঠান্ডা করবে। तो विंटर में इनका बादाम पाक बनाते हैं हम। कैसे? घी, गोड़ और बादाम। तो एकदम गर्म होता है, और बादाम तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए बादाम का लाडू बनाते हैं विंटर में। তো শীতকালে আমরা দেখিয়েছিলাম যে শীতকালে ঘি, গুড় আর এই বাদামটাকে দিয়ে বাদামের নাড়ু বানানো হয়। তো সেই বাদামের নাড়ু শরীরকে খুবই গরম রাখে শীতকালে, এবং বাদামটা আমাদের মস্তিষ্কের জন্য খুবই ভালো। এজন্য বাদামের নাড়ু খেলে ব্রেইন, মস্তিষ্ক খুবই উর্বর হয়। অনেক ভক্তরা বললেন কিভাবে শ্লোক মনে রাখবো, সংস্কৃত মনে রাখবো, বা কিভাবে আমরা আরো স্মরণশক্তি বাড়াতে পারি, বাদামের নাড়ু খান। लेकिन समर में या तो एग्जाम्स आते हैं, तभी दूध में हमने पहले बताया था बादाम, पिस्ता, इलायची, वो सैफरन, क्या कहते हैं सैफरन को, केसर। केसर, ये सभी चीज डालने के लिए बहुत ब्रेन के लिए अच्छा होता है, और ठंडा भी होता है क्योंकि दूध बहुत ठंडा है। फिर कभी कभी उसमें घी भी डालते हैं। तो बेस्ट रेमेडी है फॉर मेमोराइजिंग श्लोका, फॉर रिमेम्बरिंग, फॉर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट। तो ये बादाम का दूध, पिस्ता, बादाम, गर्मी में इलायची, सब भी टाइम।
गर्मी और ठंडी में। আচ্ছা, তো আমরা দুধ দেখিয়েছিলাম আগে কিভাবে দুধ খাবেন আপনারা। দুধের মধ্যে এই যে ঘি, তারপর অ্যালমন্ড, কাঠবাদাম, তারপরে পেস্তা, তারপর और इलायची। এলাইচি, এগুলো দিয়ে খেলে ভালো করে, তখন সেটা খুব ভালো হয় এবং ব্রেইন শার্প হয়। যারা স্টুডেন্ট আছে, বাচ্চারা আছে, বাচ্চাদেরকে দুধ দেওয়ার জন্য আমাদেরকেও ঘরে দুধ দেওয়া হতো। কিন্তু খালি দুধ খেতাম আমরা। মানে জাস্ট দুধ গরম করে। কিন্তু যারা বাবা-মা আছেন, ভালো করে আপনারা শুনুন। আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে এই দুধের মধ্যে ঘি, কাঠবাদাম, পিস্তা, এলাচি সেগুলো দিয়ে ভালো করে দেবেন। তাদের ব্রেইনটা শার্প হবে। तो ये पिस्ता ठंडक है, लेकिन हम बहुत कम यूज़ करना है। उसका मतलब जो एक्सपेंसिव चीज़ है उसका नेचुरली कम यूज़ करते हैं। क्यों? कि शरीर के लिए भी कम यूज़ करना है। तो ये अपलिफ्टिंग है, आपको खुशी करेगा, हैप्पी। जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था केसर है, इतना हँसाते हैं लोगों को कि हँस कर प्रॉब्लम हो जाता है ईरान में। ऐसी चीज़ें हैं हमारा ये सेम विद पिस्ता, इतना अपलिफ्टिंग है कि তো সে थोड़ा ही यूज़ करो। লাস্ট টাইম মাতাহি বলেছিলেন, ইরানে একজন লোক কেশরের দুধ খেয়ে বা কেশর খেয়ে হাসতে মরে গেছে। তো এইজন্য এগুলো দিতে পারেন। और ये अपना किशमिश आप बोलते हैं, हम द्राक्ष बोलते हैं, सूखा द्राक्ष बहुत वैल्यू है, प्रॉपर्टी है। देखो हमारे खाने में कभी राइस में डालते, कभी सब्जी में डालते, कभी खीर में डालते, सब भी मिष्टान में डालते। ये बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। তো আপনারা কিশমিশ তো আমাদের ঘরে থাকেই। কিশমিশ আমরা পায়েসে দেই, বিভিন্নভাবে দেয়া হয়। তো কিশমিশটাও ভালো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। और दूसरा ये हर्ब है धनिया। वो धनिया इतना कूलिंग है, किसी वो रियल एक्चुअल फॉर्म में ये वाला है ग्रीन धनिया, और ड्राई धनिया ऐसा है, राइट? जैसे आप ग्राउंड में फेंक दो तो जल्दी जल्दी से उग जाएगा, इतना जल्दी उगता है, ये धनिया है। तो এটা एकदम হচ্ছে ধনিয়া। আপনি ফ্রেশ ধনিয়া হচ্ছে এরকম, কাঁচা ধনিয়া সবুজ বাজারে পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে শুকনো ধনিয়া, শুকনো ধনে। সেই শুকনো ধনে এটা এত ভালো। तो ये धनिया ऐसी चीज है, किसी को स्टमक का अल्सर होए, कोई भी अल्सर होए तो उसका जूस बनाकर पीना, या तो हम गुजरात में तो चटनी करते हैं ना धनिया का, थोड़ा सा मिर्ची डालते हैं, लेकिन धनिया ज्यादा होता है और कोकोनट होता है साथ में। तो धनिया एकदम ठंडक चीज है, इसीलिए सब भी खाने में, खाना खत्म हो गया बनाने का तो ऊपर से राइस में, दाल में, सब्जी में काट कर धनिया डालते हैं। তো এরকम ধনিয়া এত ভালো যে আমরা সব জায়গাতে এই ধনিয়াটা দেয়া হলে খুবই এটা উপকারী হয়। दूसरा चीज है ये जीरा। जीरा है ना, ये भी कूलिंग में आ जाता है। तो जीरा तो इतना स्पेशल आइटम है कि हमको हेल्प करता है डाइजेशन में, एब्सॉर्प्शन में, राइट? तो ये बहुत अच्छा चीज है, इसलिए हम देखो सभी सब्जी में, दाल में, चावल में, सभी में जीरा यूज करते हैं। और वेस्ट में लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या चीज है, बस गोली, उसका गोली बनाकर ले लेते हैं। लेकिन कितना टेस्टी लगता है, जैसे जीरा चावल। हाँ, तो জিরা রাইস খুব সুন্দর। তো বিদেশে এই জিরার নাড়ু বানিয়ে গলি বানিয়ে খায়, মানে এতটা ভালো এটা। तो हमारा चीज इतना साइंटिफिक है। और ये हम आपको बताएंगे, इसको चिया सीड्स कहते हैं। वो इंग्लिश में चिया सीड्स कहते हैं, गुजराती में, हिंदी में तुकमरिया कहते हैं, और बेंगला में तुकमा, तुकमा बोलते हैं। বাংলায় তুকমা। হ্যাঁ। तो वो पानी में डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाता है। तो बिल्कुल भिगो ये बहुत कूलिंग है। तो वो ड्रिंक्स में, फ्रूट सलाद में, मीठा कोई चीज़ है उसमें डालते हैं। तो हम दिखाएंगे आपको। तो ये खाली इंट्रोडक्शन है कि सभी हर्ब, और सबसे बेस्ट हर्ब है ये फेनल सीड्स। हिंदी में इसको सौंफ बोलते हैं, गुजराती में वरियारी बोलते हैं, बेंगला में क्या बोलते हैं, सौंफ क्या बोलते বাংলায় আমিও জানি না। এটা সোফ, তো এটা অনেকটা কিরকম এটা। हैं? बड़ा जीरा। হ্যাঁ। बड़ा जीरा।
ये तो देखो ये बहुत कूलिंग है कि मुखवास में हर रोज यूज करते हैं, क्योंकि इसका तो क्वालिटीज तो हम इनफ ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, इतना अच्छा है। खाना खाकर डाइजेशन में हेल्प होगा, खाली मुंह में डालकर चबाना है। बेस्ट चीज़ है कि उसको थोड़ा रोस्ट कर कर रखे बोतल में तो अच्छा है। एक्चुअली वो तिल के साथ होता है, तिल, फेनल सीड्स, और ये धनिया है, वो गुजराती में मिलता है, उसका अंदर का सीड, तो उसका मुखवास होता है। तो उसे खाने से डाइजेशन होता है, लेकिन माइंड को अपलिफ्ट करता है। ऐसे लेथर्जी फील होता है ना खाना खा करके, बहुत थक लग गया, वो बहुत खराब है, क्योंकि ज्यादा खा लिया या तो इनफ चबाया नहीं। इसीलिए आपको ये खाना है, ये मुखवास, तो अच्छा डाइजेशन हो जाएगा। তো ভালো করে হজম করার জন্য বা যারা ভালো করে না চিবিয়ে খেয়ে নেন তাদের জন্য এটা খাবার পর এটা মুখবাস মুখশুদ্ধি তার জন্য এটা ব্যবহার হয় চিবিয়ে খেতে পারেন এটা तो दो चार और चीजें बताएंगे, जैसे हमने धनिया बताया, ऐसा डील है। डील को गुजराती में सुआ बोलते हैं। सुआ मीन्स उसका सीड्स भी होता है, लेकिन बेबी जब भी छोटा होता 6 महीने तक इसका रेडीमेड जूस मिलता है, उसको डील वाटर कहते हैं। ডিল ওয়াটার रेडीमेड फार्मेसी में मिलता है डील वाटर इसका। तो क्या है, उससे बेबी को डाइजेशन अच्छा हो जाता है, इसका ब्लोटिंग बर्पिंग सभी। ये तो इतना अच्छा चीज है कि वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है, बेबी पी लेता है, हम भी पी लेते हैं। इतना टेस्टी है, जैसे कि थोड़ा ये सौंफ है उसके जैसा ही होता है। तो ऐसी ऐसी चीज है कि हमको जानना चाहिए, ये सभी ठंडक है, राइट। और कभी कोई कहते हैं ओ क्या करे, वो अलग अलग तेल यूज करते हैं, जैसे बंगाल में मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल बहुत हैवी होता है, गरम होता है। तो चलो विंटर में करो, लेकिन समर में तो कोकोनट ऑयल और घी, घी बेस्ट चीज है अंदर के लिए। নারিকেল তেল রান্না করতে হবে ঠিক আছে যদি সুস্থ ঘরে ভালো করে খেতে চান অনেকে রিফাইন্ড তেল রান্না কোনো রিফাইন্ড তেল না তো নারিকেল তেল এগুলো তো আজকাল তো অনেক দাম পাওয়া যায় দামি রান্নার যে তেলটা অর্গানিক কোকোনাট অয়েল কোল্ড প্রেসড তো দেখুন যদি লোকালি কোনোভাবে বানানো যায় ভালো এগুলো তো অনেক দামি এটা অনেক দাম হয় তবে যদি যেমন দক্ষিণ ভারতে কেরালা সব কিছু নারিকেল তেলেই সব রান্না করা হয় তো আয়ুর্বেদ অনুযায়ী ভালো এটা ओके, देखो दूसरा शुगर जो सभी को अच्छा लगता है, तो ये है रॉक कैंडी कहते हैं इंग्लिश में, गुजराती में साकर कहते हैं, মিশ্রি মিশ্রি দানা और हिंदी में मिश्री कहते हैं। ये कूलिंग है, क्योंकि डायरेक्टली शुगर केन में से बना होता है। और ये गुड़ है, वो हीटिंग है, तो विंटर में सभी गुड़ का यूज करते हैं। लेकिन आज मैंने सुना कि महाराष्ट्र में गुड़ का पानी देते, तो गर्मी से ठंडा बन जाता है। जैसे कोई भी चीज गर्म होता है तो उसको ठंडा, मैंने बादाम की चीज बताया कि ऐसा खाने से गर्म होता है, लेकिन पानी में भिगोकर खाए तो ठंडा होता है। कैसे यूज करेगा इसके ऊपर है ठंडा गर्म। तो হ্যাঁ দেখুন এটা হচ্ছে ভগবানের অদ্ভুত ব্যাপার প্রকৃতির ব্যাপার এই গুড়টা যদি আপনি ঠান্ডার দিনে শীতের দিনে খান এরকম যদি কাঁচা গুড় খান তাহলে সেটা আপনার শরীরকে গরম করবে গুড় আমাদের শরীরকে গরম করে দেয় কিন্তু এই গুড়টাই যখন গরমের দিনে আপনি জলে ভিজিয়ে খাবেন গুড়ের শরবত গুড়ের শরবত বানিয়ে জুস বানিয়ে খাবেন পানাকম নৃসিংহ পানাকম দে এই গরমের দিনে পানাকম দে পানাকম भी देता है ना नरसिम्हा के लिए गर्मी में হ্যাঁ তো যখন এইটা জলের মধ্যে ভিজিয়ে পানাকমের মতো বানিয়ে খাবেন পান করবেন তখন আপনার শরীরকে ঠান্ডা করে দেবে হ্যাঁ তো এমনিতে কাঁচা খেলে এমনিতে খেলে এটা গরম আর জলে ভিজিয়ে খেলে ঠান্ডা অদ্ভুত ব্যাপার তো কিভাবে ব্যবহারটা জানতে হবে আমাদের तो ये आयुर्वेद का सीक्रेट्स है, आपकी ग्रैंड माँ से सीखो, आपकी नानी, दादी, मम्मी, उससे सीखो, ताकि सभी को ये ज्ञान मिले। मैंने ही ऐसा ही सीखा था कि ठंडा से गरम, गरम से ठंडा कैसे यूज करना, उसका प्रॉपर्टी कैसा है। जैसे कि अदरक है, आदा है, एक ठंडा है, नॉर्मल है या तो न्यूट्रल है, लेकिन आदा का पाउडर खाएंगे तो एकदम गर्म है।
तो वो ठंडी के सीजन में पाउडर यूज करते। तो ये ज्ञान होना चाहिए कि अदरक के बिना अदरक का पाउडर ले लो, बिल्कुल काम नहीं आएगा। তো এটা এটা একটা ব্যাপার যে আদার গুঁড়োর গুণটা আলাদা, আবার শুকনো আদার গুণটা আলাদা। তো একই প্রকৃতির দেখতে পারি আমরা। एक ही चीज का अलग अलग प्रकृति कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर। अभी मैं आपको कोई सरप्राइजिंग चीज बताऊंगी ठंडा माइंड के लिए। ये ब्रह्मी है। उसका पता मिलता है इधर तो बंगाल में। ब्रह्मी इतना कूलिंग है, आपको माइंड को कूल करेंगे। आपके जब भी बात करते हैं जो बहुत फास्ट करते हैं, वात वात को कम काम करेंगे इंस्टेंटली। तो ब्रह्मी ग्रीन लीफ में मिलता है, पाउडर में मिलता है, कैप्सूल में मिलता है, लेकिन हमारे पास तो गोली में है। देखो, तो 2 गोली खा लो, तो जैसे आप भी फास्ट बोलते हैं, ये खाएंगे तो बिल्कुल स्लो बन जाएंगे। इतना अमेजिंग चीज है ब्रह्मी, और कूलिंग है माइंड के लिए। तो ऐसी चीज है तो ब्रह्मी। कब कब लेना है इसको? दिन में 2-3 बार ले लो, या तो क्लास के पहले ले लो, आपको जरूरत है। जस्ट ऐसे ऐसे ही पानी में डाल के? पानी से, हाँ, क्योंकि गोली है तो इजी रीत है। दो पानी के साथ जैसे गोली खाते खा लो। हाँ, गोली है ना। तो ऐसी ऐसी चीज है कि इंस्टेंटली नर्व काम कर देते हैं और ब्रेन पावर देते हैं ये। तो ऐसे दूसरी 2-3 चीज बताती हूँ मैं। शंख पुष्पी, शतावरी, ब्रह्मी, ये सभी अमेजिंग गॉड सेंड चीज है, हेवनली। हम कहते हैं हेवनली हर्ब्स। हाँ, বাহ! তো এগুলো শতাবরী আর क्या बोला? पुष्पी। শঙ্খপুষ্পী, শতাবরী আর ব্রাহ্মী। তো এই ব্রাহ্মী তো আমাদের এখানে তো পাওয়া যায়, মানে দোকানে, বা এটা কিসের হিমালয়ান ব্র্যান্ডের ব্রাহ্মী আছে, দোকানে পাওয়া যাবে। শতাবরী, শঙ্খপুষ্পী সেগুলোও পাওয়া যেতে পারে। जो शंख शतावरी और शंख पुष्पी विमेन के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोन के लिए। और ब्रह्मी तो छोटे बच्चे भाग दौड़ करते हैं ना, उसको ब्रह्मी का तेल लगाना, ब्रह्मी का पाउडर दे देना, इतना काम होगा। जब भी मदर ब्रेस्ट फीड करती वो खाएगी तो बच्चा एकदम शांत बन जाएगा। इतना अच्छा है, धनिया की जैसे खा सकते हैं आप। ऐसी अमेजिंग चीज है ब्रह्मी। ধনিয়া যেরকম সব জায়গায় দেয়া যায়, এটা ব্রাহ্মীটাও সবাই খেতে পারবে। तो सभी को खाना है ब्रह्मी, और हम लोग भूल गए इसके बारे में ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बैलेंस करेंगे हार्मोन। हम समझते गोड़ी, क्योंकि हमको फ्रेश लेना नहीं है इसलिए गोड़ी में बना कर रखा, राइट। तो ये हमारा एपिसोड 1 है। বাহ! तो इसके बाद তো আমরা আজকে অনেক কিছু দেখালাম আপনাদেরকে, কি কি জিনিস খেতে হবে, কি কি জিনিস কি করলে কি হবে। খুব সুন্দর ব্যাপার। हाँ, आप सवाल पूछिए कुछ कमेंट्स में, जो भी है हम आंसर करेंगे। तो हमारा बहुत खुशी लगता हमको कि हम आपके साथ सभी ये अपना वैदिक रीति रिवाज कैसे यूज करना है आपके साथ शेयर कर सकते हैं। তো আপনারা যারা যারা শুনছেন, আগ্রহ পাচ্ছেন, আপনারা প্রশ্ন করবেন, মন্তব্য করবেন। আরও কি কি জিনিস আপনারা শুনতে চান, শিখতে চান, দেখতে চান, আমরা আপনাদেরকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আসবো। हरे कृष्णा। হরে কৃষ্ণ। शिला प्रभुपाद की। জয় জয় শিল প্রভুপাদ কি জয়।